LBP, lower back pain. What I would like to advise the details of LBP is that the every student, the every doctor today is listening me will be able to see the patient and diagnose the patient practically. When the patients come to your clinic, what the ailment he is suffering from. Unfortunately, uh, I have first of all I will be talking both in English and Urdu as well because it will be easy for all of you and me. And the thing is that when the patient comes, the main thing in Pakistan, what I see, patient don't know that what the disease he is suffering from. And unfortunately, doctors are not telling the patient what the ailment he is suffering. The diagnosis is not proper. So what is the end result? The patient from the acute stage becomes chronic due to the mishandling of the doctors. This is the, you can say, ultimate problem in Pakistan. And when you are on your seat, how do the homeopathic doctor get know the basic symptom, a general symptom, lower back pain? Lower back pain, what is lower back pain? It is not a disease. It is a conclusion of symptoms, including your bone stress, your muscle stress, your nerves will be compressed. Then, in the result, LBP, lower back pain, rises. Now, there are 12 to 14 or 16 types of lower back pain. But the thing is that you have to diagnose how, when happened to the patient, what the category patient belongs, what the profession patient belongs. Suppose a labor comes to your clinic and he said, I have having a lower back pain. So what you have to do, a rich person comes to your clinic and told about his or her pain of lower back pain. You must know what will be the diagnosis, what is the direction. If a fat man comes, uh, over healthy person, a female comes, you have to diagnose what is the reason. So this is the main, the frame, the patient when comes to your clinic. You have a doctor have a eye which a layman don't have. He must check the patient what the vision the doctor have for the patient, and patient to give a general understanding. The patient, the doctor must give the patient a general understanding that what the disease you are suffering. So मैं आपको अब ये तफसील में बताता जाता हूँ. सबसे पहले लोअर बैक पेन का अगर आपके पास पेशेंट आया कि जी मुझे दर्द हो रहा है, लोअर बैक पेन शुरू कहाँ से होती है? मेन मेरा आपके कॉन्सेप्ट होना चाहिए. मुझे अभी यही पता है कि आप जो डॉक्टर हजरात हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, कि आप लोगों को क्या पता है कि जब लोअर बैक पेन कहते हैं तो कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व होता है मोहरों का? विच पार्ट इज इन्वॉल्व? लोअर बैक मीन्स कमर का निचला हिस्सा. अब वो निचला हिस्सा, एक हम वर्बली बात करें जी कमर का निचला हिस्सा, एक हमें मेडिकल अप्रोच से हमें पता होना चाहिए कि जी कौन सा निचला हिस्सा वो कौन सा होता है. तो जब भी लोअर बैक पेन की बात होगी, ऑलवेज लंबर पोर्शन इज इन्वॉल्व. ऑलवेज लंबर पोर्शन, सेक्रल एंड कॉक्सिक, ये तीन है. रीढ़ की हड्डी की दुमची और उससे ऊपर का हिस्सा यानी रीढ़ की हड्डी का 1/4. जब भी एलबीपी आएगा तो आपने ये जहन में रखना है कि ये वाला पोर्शन आपका इफेक्टेड है पेशेंट का. अब इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको ये पता हो कि मोहरे कितने 33 वर्टिब्रास होते हैं, लेकिन उनकी डिवीजन क्या है? उनकी डिवीजन ये है कि सर्वाइकल में 7 हैं, थोरेसिक में 12 हैं, लंबर में 5 हैं, सेक्रल और कॉक्सिक के फ्यूज्ड हैं. तो होता ये कि व्हेन यू विल बोर्न, व्हेन यू वाज बोर्न, इट इज 33, बट जब आप बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, तो ये 24 कंसिडर होते हैं. तो उसमें जो लास्ट पोर्शन चूंकि डिफ्यूज्ड है, तो वो उसमें उसको कंसीडर करते हैं कि ये जो कि बड़े होकर एडल्ट्स जब बोन्स हो जाती हैं तो वो 33 की बजाय 24 काउंटिंग में कंसीडर होती है. तो जब आप भी पेशेंट आया, उसने कहा जी मुझे लोअर बैक पेन है, तो एक चीज तो आपके ब्रेन में क्लियर होगी कि लंबर रीजन है L1 2 3 4 5. अच्छा, क्योंकि मोस्ट स्ट्रेस हमारी बॉडी जो है वो एक इसमें रीढ़ की हड्डी पिलर है, बैक, बाय द नेम बैकबोन. व्हाट इज द मीनिंग बैकबोन? बैक मींस, हम वैसे भी जर्नल कहते हैं जी उसकी बैक है, इट मींस ही इज स्ट्रांग पर्सन. सो बैकबोन मींस स्ट्रांगनेस. आपको कवर अप देती है, आपकी पूरी बॉडी का वेट जो है वो आपकी कॉक्सिक और लंबर में उठाया होता है. तो इसलिए मोस्टली जो चांसेस होते हैं 80% वो लोअर बैक पेन के आते हैं.
तो ये जर्नल है। अब आप आ जाए, हर एक एरिया की एलिमेंट है, डिजीज है, उस एरिया के हिसाब से जो वो डाइट लेता है, जो उसका रिलीजन है, जो उसकी इनटेक है और आउटपुट है, उसके हिसाब से उसकी एक केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है। तो आपके पास जब पेशेंट आता है, यू मस्ट कंसिडर दिस थिंग कि ये पेशेंट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इसकी केमिस्ट्री क्या है, इसकी बॉडी क्या है, इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। अच्छा, अब पेशेंट आया, आपने उसको डायग्नोज करना है। हाउ विल यू डायग्नोज, कैसे मैं इसमें करूं, इसमें डिस्क स्लिप है, इसमें डिस्क हेरिनेटेड है। हेरिनेटेड डिस्क क्या है, इसमें भी बेशुमार चीजें हैं हेरिनेटेड डिस्क में, जो मैं आज आपको बताऊंगा। यू विल बी सरप्राइज कि जी इतनी सारी चीजें निकल आई, तो हम किस किस चीज को ट्रीट करेंगे और कैसे करेंगे। क्योंकि एक जनरली लोअर बैक पेन्स के जो रीजंस हैं वो इतने ज्यादा हैं कि हमें यही टाइम गुजर जाता है पहुंचते पहुंचते कि इसमें कौन कौन सी वजह हो सकती है। हेरिनेटेड डिस्क है, मसल स्ट्रेन है, मस्कुलर इंजरी है, स्पोंडोलाइसिस है, ऑस्टियोप्रोसिस है, वर्टेब्रा फ्रैक्चर है, नर्विंग ऑफ स्पाइनल कैनाल है यानी मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, स्क्लेरोसिस है, डीजेनरेटिव चेंजेस हैं, स्कोलियोसिस है, ट्यूमर्स हैं, प्रेगनेंसी है, ओबेसिटी है, थायराइड है। तो इतनी 12-13 जब आपके पास होंगी कॉज ऑफ लोअर बैक पेन, सो हाउ विल यू डायग्नोज कि इसको किस तरह हो रहा है या कैसे हो रहा है। हर डायग्नोज के हिसाब से आपके पास एक कंक्लूजन होना चाहिए कि अगर आपके पास पेशेंट आया और वो आपको सिंपली कह रहा है कि मुझे सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं लोअर बैक पेन में, तो इट मीन्स इट इज अ जनरल पेन। ये बिल्कुल एक एक्यूट लेवल का पेन है। आप उसे हिस्ट्री लें, क्या आप बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा हैवी वेट आपने उठाया, आपने गलत बॉडी पोस्चर एंगल था, आपने कोई चीज पुल या पुश की, तो उससे आपको मसल स्ट्रेन तो नहीं हो गया, मसल पुल तो नहीं हो गया, मसल पुल होने से तो नहीं पेन आ गई। ये आपकी पहली कैटेगरी है। अगर आपके पास पेशेंट एक्यूट हिस्ट्री का है, वो कह रहे जी डॉक्टर साहब मुझे 1 हफ्ता हुआ है, 1 महीना हुआ है, ये दर्द हो रही है और जा नहीं रही। और वो दर्द की नोयत क्या बता रहा है कि जी लोअर बैक में पेन है, लेकिन सुनपना नहीं है, टिंगलिंग नहीं है, नमनेस नहीं है। आप उसको पूछिए स्टिफनेस है मसल्स में या थाइज में या लोअर लिम्स में कुछ स्टिफनेस है, वो बताएं। वो कहते हैं जी वो भी नहीं है, सिर्फ मुझे लोअर बैक में पेन है। सो दिस इट मींस द कैटेगरी ऑफ डिजीज इज एक्यूट। बड़ा लोअर लेवल का है, उनको फिर उनका नेचर ऑफ जॉब पूछें, आपका क्या है, सारा दिन कंप्यूटर पे है, सिटिंग है आपकी 8 घंटे 9 घंटे, कितनी वर्किंग आवर्स हैं, फिर आप कंप्यूटर पे बैठते हैं या पियानिस्ट हैं या सिंगर हैं या आप कॉल लेते हैं, फोन कॉल्स की भी, लोग कॉल सेंटर्स में जॉब करते हैं उन बेचारों को भी ये मसला आ जाता है। फिर आप ओवरवेट हैं। तो इस तरह से हमारी पहली बेस आती है पेशेंट्स के लिए कि लोअर बैक अगर पेन का कोई पेशेंट आ गया है तो वो किस कैटेगरी में आया। इस स्टेप के साथ सेकंड स्टेप आपके पास पेशेंट आया, वो कहता है जी मुझे लोअर बैक पेन को 6 वीक्स हो गए, 2 मंथ्स हो गए, अभी स्टिल दिस पेशेंट इज ऑन एक्यूट लेवल, ये अभी क्रॉनिक में नहीं गया। क्रॉनिक में ये कब जाएगा, जब इस पेन को 3 मंथ्स हो जाएंगे। अगर 2 मंथ से ऊपर चला गया सब क्रॉनिक में आएगा, 3 मंथ से ऊपर चला गया ये क्रॉनिक में आ गया डेफिनेटली। अगर वो एलोपैथिक में मस्कुलर रिलैक्सेंट्स ले रहा है और उसको रिलीफ नहीं मिला और वो होम्योपैथिक की तरफ आया, तो हमें उसको डायग्नोस करना है। अब डायग्नोस में अगर हम डिटेल्स में जाएंगे, 3 मंथ से पुराना हो चुका है, तो आप सिटी स्कैन पे जाएं, एमआरआई पे जाएं, बहुत जरूरी है, हमने वो करवानी है। जो लोग ये कहते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर सिम्टम से ट्रीट करते हैं, देखें दिस इज राइट, ये हमारा क्लासिकल वे है, वी शुड अप्रिशिएट। बट प्रैक्टिकली भी आपको पैथोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि पेशेंट को क्या हुआ है, उसके अंदर क्या चीज प्रॉब्लम कर रही है। मेरे जितने पेशेंट्स हैं, जो मेरी प्रैक्टिस टेन्योर, मुझे 24 ईयर्स हो गए प्रैक्टिस करते हुए, और इस वक्त बहरहाल मेरी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करूँ, मेरा एक ही उसूल है कि पेशेंट्स की जब तक मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं होती, डायग्नोस नहीं होता, मैं उसे मेडिसिन नहीं देता। जब उसकी डायग्नोस आ जाती है और उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, 1 मंथ के बाद रिपीट करवाता हूँ, जो भी रिजल्ट आता है पेशेंट की भी आंखों के सामने होता है, डॉक्टर के भी सामने होता है। मेरे सारे ही रिजल्ट ऐसे ही हैं और डिस्प्ले में होते रहे। मैं होम्योपैथिक में एनजीओ में भी जॉब करता रहा और सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स से वहां पे मेरे होम्योपैथिक पेशेंट्स के जो रिजल्ट थे वो डिस्प्ले होते थे कि 7 डेज 1 मंथ में क्या रिजल्ट आए, और सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स दे रश टू मी फॉर देयर ट्रीटमेंट्स। उसमें बहुत बड़ी पर्सनालिटीज हैं पंजाब की, इसमें आईजी सुखेरा साहब के अंकल हैं, सुखेरा साहब जो जज हैं और वो रिटायर्ड हो गए, और उनको वो सीआरएफ का केस था, और उनके नेफ्रोलॉजिस्ट लाहौर के बड़े मशहूर ताहिर शफी साहब थे। तो वो केस जो है मेरे पास रेफर हुआ, उनकी साहबजादी शी इज एलोपैथिक डॉक्टर, और मेरे पास ईएसटी और बीएसटी केसेस थे हार्ट के,
बच्चे जो जिनके दिल में सुराख होते हैं। तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल का स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर आता था, तो उसके केसेस बच्चों के मैंने ग्रिप कर लिया एक मिराकुलसली मेडिसिन दे के। तो वो एक स्नेक वेनम है जो हम देते हैं दिल के सुराख में बच्चों को, और वो ठीक हो जाता है। तो इस तरह के इनक्रेडिबल्स जो स्पार्किंग रिजल्ट थे होम्योपैथिक के, वो उन लोगों ने जब देखे तो वो लोग कन्वर्ट हुए फ्रॉम एलोपैथिक टू होम्योपैथिक। उन लोगों का दिल आया, पूछने आए हाउ, कैसे। सो होम्योपैथिक में अगर आप पैथोलॉजी पढ़ेंगे, आपको पता होगा कि क्या प्रॉब्लम है अंदर पेशेंट के, यू विल बी एबल टू ट्रीट द पेशेंट। एंड आपका एक पर्पज है, आपका एक मकसद है, आप काम कर रहे हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के हैसियत से, आपका क्या मकसद कि जिस चीज से हमें सक्रिय किया जाता है उस पे आप ओवरकम आ जाए। सो तो उसमें आपको पैथोलॉजी के रेफरेंस से लैब टेस्ट पढ़ना और पता होना चाहिए कि कब कौन सा टेस्ट हमें करवाना चाहिए। तो लोअर बैक पेन अगर क्रॉनिक होगी, यानी 3 माह से पुरानी आ गई पेशेंट, अब वो कह रहे जी मेरी लातें भी सुन्न हो रही हैं, मेरे से झुका नहीं जाता, मेरे से कोई चीज तेज चला नहीं जाता, मैं बाइक पे नहीं बैठ सकता, मैं रिक्शे पे नहीं बैठ सकता, मैं गाड़ी में नहीं बैठ सकता, तो आप उसको कैटेगराइज करें कि ऐसा क्यों है। इसमें जो पहले एक दो जनरल टेस्ट है आपके क्लिनिक पे, वो स्ट्रेट स्ट्रेच लेग होता है, आप बिल्कुल कमर के बल लेटाएं और उनको कहेंगे अपनी लेग जो है बगैर घुटने में खाम दिए पहले राइट लेग को ऊपर लेके जाएं 90 के एंगल पे, फिर लेफ्ट को। तो जिनके याद रखें डिस्क स्लिप होगी, हेरिनेटेड डिस्क होगी, जिनके अंदर नर्व कंप्रेशन यानी जो प्राइमरी और सेकेंडरी और थर्ड स्टेज लोअर बैक पेन के बाद जो आती है वो शैटिक की आती है। कि पहले वो लोअर बैक पेन था, वो एक्यूट लेवल का था, वो ट्रीट नहीं किया, स्वेलिंग क्रॉनिक होती गई, वो सब सब क्रॉनिक हुई, फिर क्रॉनिक हुई, क्रॉनिक होने के बाद वो एलबीपी के स्टेज से बाहर आ गई, फिर वो शियाटिक के स्टेज में आ गई। जब वो शियाटिक के स्टेज में आई तो क्या हुआ, शियाटिक के स्टेज में जो पहले एक मसल्स में मसल के हद तक जो एक था स्ट्रेन था, स्ट्रेस था, वो खत्म होके उसकी डीप ट्रेवल कर चुका है, वो नर्व्स के अंदर ट्रेवल कर चुका है। और वो नर्व्स के अंदर ट्रेवल करने का क्या मतलब है कि आपके वर्टेब्रास में भी कोई इश्यूज पैदा हुआ है। वर्टेब्रास में क्या इशू पैदा हुआ है, उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हेरिनेटेड डिस्क तो नहीं हुई, जिसके लिए हम एमआरआई करवाते हैं। हेरिनेटेड डिस्क में एक होता है जनरल डिस्क स्लिप हो जाती है। 24 डिस्क होती हैं हमारी, 33 जो वर्टेब्रास हैं, यानी कि इसके बाद वो 24 में आ जाते हैं। तो वो डिस्क स्लिप हो तो और कंडीशन है। आपका मोहरा पंचर हो जाए, जिसे कहते हैं कि बल्जिंग ऑफ जो है वर्टिब्रा हो गया। व्हाट इज बल्जिंग? बल्जिंग क्या होता है, जैसे ऊंट की हम्प होती है, इस तरह हमारे मोहरों के अंदर एक फ्लूइड होता है, जिसमें वो फ्लूइड में क्या होता है 68% से 86% तक पानी होता है, बाकी कोलेजन होता है। जैसे कोलेजन, कोलेजन क्या चीज है? कोलेजन वो फ्लूइड है जो आपके मोहरों में, आपके घुटनों में अल्लाह पाक ने एज ए लुब्रिकेंट, एज ए कुशन पैदा किया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी, आपके जो वर्टिब्रास हैं उनमें जो जर्क्स हैं, जो स्ट्रेस है, जो भागते दौड़ते एक्सरसाइज करते एथलीट्स, जो फाइटर्स हैं, जो बॉक्सर्स हैं, जो जूडो कराटे करते हैं, ये लोग जब इतनी सख्त स्ट्रेस देते हैं तो उसके बावजूद उनके जो बॉडीज हैं वो डैमेज, मसल्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मोहरे जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं और हमें स्ट्रेस नहीं आता है। ये जो लचक है हमारे अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो उस फ्लूइड की वजह से है जो मोहरों में होता है। और वो फ्लूइड अगर मोहरा डीपली, जो हेरिनेटेड डिस्क है, अगर वो पहली स्टेज यानी स्लिप डिस्क से निकल गई, जो जनरल इंजरी है उससे निकल के डीप में चलेगी, तो वो उसमें बल्जिंग में चली जाती है, यानी कि वो उसका फ्लूइड उसमें से जाया हो गया। और फ्लूइड जो है, ये आप आज आपको बहुत बड़ी बात बता दूं कि वो रिफिल भी होता है आपकी जो खुराक आप खाते हैं उससे, और हमारी मेडिसिन से भी हो जाता है। तो बल्जिंग ऑफ डिस्क जो है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की हैंडल हो जाती है अगर आपके पास शैटिक का या नर्व कंप्रेशन का पेशेंट आ जाए। जैसे मेरे पास मेरे जोलॉजी के टीचर थे गवर्नमेंट एफसी कॉलेज के, बीएससी जब मैंने की तो वो कनाडा चले गए। तो मुझे याद है 2010 में उनकी मुझे कॉल आई और मेल आई कि जी मेरी जो मिसेज हैं उनको L4 और L5 में शैटिक हो गया है, लोअर बैक पेन थी, एलबीपी थी, और उसके बाद वो शैटिक हो गया। तो टोरंटो जो है कनाडा में, तो यहाँ वो जो था उनका हॉस्पिटल, उसमें उन्होंने रिकमेंड किया कि आपका ऑपरेशन होगा। नर्व्स जो हैं मोहरों के दरमियान जो चल रहे हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, या वो अंदर प्रेशर में आ जाते हैं, दब जाते हैं, जिसकी वजह से वो ऑपरेशन करके उसे निकालती हैं। लेकिन इस ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं, इसमें कोई गारंटी नहीं होती। इस पर साइन अप करते हैं कि जी ऑपरेशन हो सकता है, वापस चलने फिरने के काबिल ना रहे।
क्योंकि वो 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद नर्व कंप्रेशन दोबारा हो जाता है। वो एलबीपी और शियाटिक ये क्रॉनिक स्टेजेस में है, जिसमें हमारे पास होम्योपैथिक में पेशेंट बगैर ऑपरेशन के वापस आ जाता है। अच्छा जी, हेरिडिटेड डिस्क के बाद मस्कुलर स्ट्रेन्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, बेचारे लेबर के लोग हैं, सारा दिन जो काम करते हैं मैकेनिकल, फिर वो लोग हैं बेचारे जो मजदूर हैं, उनको आप मद्देनजर रखें, जो सारा दिन बेचारे ईंटें उठाते हैं और उनके पास अच्छी रोटी खाने को नहीं होती, अच्छी खुराक खाने को नहीं होती। ऐसे लोग सबसे ज्यादा शियाटिक और एलबीपी के पेशेंट होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, वो ऑस्टियो डिजेनरेशन के पेशेंट भी हो चुके होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट भी हो सकते होते हैं। उनको दूध और अच्छी खुराक में और प्रोटीन अच्छी ना मिलने की वजह से उनके मोहरे, उनकी हड्डियां घिस जाते हैं। सबसे बड़ी बात आप लोग लाइफ में याद रखें, सेकेंडरी ओसिफिकेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक फेज है हमारी बोन्स का, जो कि जितनी सॉफ्ट बोन्स हैं, कार्टिलेजिनस बोन्स से हैं, जो नाक की हैं, कान की हैं, मोहरों के दरमियान उसकी फिलिंग है, वो पैड्स आपके डिसॉल्व होते हैं, डीजनरेट होते हैं, तो सारे स्ट्रेसेस, सारा आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो सफर करता है, लोअर बैक पेन को भी या आपके शियाटिक को भी। इसमें सबसे बड़ी चीज जो फोकस करने वाली है, यू शुड नो द विटामिन D3 लेवल, अल्फा 25 हाइड्रोक्सी कैल्सीफेरोल जो है, ये वो ब्लड टेस्ट है जो होता है आपका विटामिन D3 का। और सेकंड जो है आपका सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में कैल्शियम लेवल, और तीसरा जो है वो फास्फोरस लेवल। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जी हमारे पास अगर लोअर बैक पेशेंट आया है और शियाटिक का पेशेंट आया है तो वो किस मोस्टली प्रॉब्लम में सफर कर सकता है। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपके पास जो पैथोलॉजिकल आपको टेस्ट रिक्वायर्ड है वो आपको नॉलेज होने चाहिए, और इंजरी की स्टेज आपको डायग्नोस करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसके अलावा अगर ये लेबर नहीं है, जूडो कराटे करने वाला नहीं है, हैवी वेट लिफ्टर्स हैं, ये लोग बेचारे ओवर स्ट्रेस करके, हैवी वेट लिफ्टिंग करके वो इंजरी ले लेते हैं जो सालों साल में बेचारे मजदूरों को आती है, या पुअर न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट्स को आती है जिनको अच्छी खुराक नहीं मिलती। तो इस कंपैरिजन के तहत आपको ये पता हो कि ये पेशेंट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, और जिस कैटेगरी या प्रोफेशन से बिलोंग करता है उसी हिसाब से इसकी हमारी अप्रोच होनी चाहिए। इन द एंड आई विल गिव यू द कंक्लूजन ऑफ द मेडिसिन, कि आप इतनी बड़ी कैटेगराइज करने के बाद उनको मेडिसिन किस तरह डायग्नोस करेंगे और देंगे कि जी अब हमें करना क्या है। क्योंकि होम्योपैथिक में फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंकफुल टू अल्लाह रब्बुल इज्जत who give us a chance to work in this field, because the homeopathic में number of medicines and choices हैं for the patients. So ये पहले जर्नल फैक्टर्स से, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके पास एक लेबर आके कहती है मुझे लोअर बैक पेन है, एक एक्सरसाइज करने वाला बंदा, एक बॉक्सर आके कहता है, एक जिम में जाने वाला बंदा आपको कहता है मुझे लोअर बैक पेन है, एक बंदा कहता है जी मैं बिल्कुल सही था, मैं सामान थोड़ा सा घर में नीचे उतरा, ये सामान उठाने लगूं, पेटी उठाने लगूं, ईंटें उठाने लगूं तो मुझे कड़क की आवाज आई है, जी मुझे चुक पड़ गई है। पंजाबी में कहते हैं चुक पड़ गई है, आम जनरल मिसाल है जी, ये मसल पुल हो, वो जो चुक होती है वो आपका नर्व या मसल जो है वो पुल हो जाते हैं। मसल जब पुल होता है तो पहले स्टेज में तो मसल पुल होता है, जिसको आप कोल्ड प्रेस में, रिमेंबर इट, कोल्ड प्रेस में ऑलिव ऑयल की मसाज करें। आपको कोई किसी भी किस्म के जो एनाल्जेसिक पेन किलर क्रीम्स हैं वो यूज करने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा नेचुरल पावरफुल एनाल्जेसिक जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया है, दैट इज ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल कोल्ड प्रेस मीन्स नॉर्मल स्टेट में आपके रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है, आप उसी में मसाज करें, उससे अच्छा कोई पेन किलर नहीं है दुनिया में। इसको आपने बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, इसमें थोड़े से लौंग डाल के बॉईल करें, इससे स्ट्रॉन्ग पेन किलर कोई नहीं होगा। तो आप एक्सटर्नली मसल को मसाज करने के बाद अगर वो स्ट्रेस से बाहर आ जाए तो वेल एंड गुड। अगर वो डिहाइड्रेटेड है, अगर उसके विटामिन के और मिनरल्स के लेवल ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली वो सेकेंड स्टेज पे, एक्यूट से क्रॉनिक स्टेज पे ट्रेवल करेगा। ये वो पहले 3 जनरल फैक्टर्स हैं जो पेशेंट आपके पास लेके आता है उसके प्रोफेशन के हिसाब से। और एक है कि एक पेशेंट आया, उसको प्रोफेशन भी ऐसा नहीं है स्ट्रेस वाला, फिजिकल स्ट्रेस वाला, कि वो 8 घंटे बैठता है, 9 घंटे वो इंटे उठाता है, और वो बड़ा रिच पर्सन है और हेल्थी खाता है और हेल्थी सोता है, फिर भी वो कह रहा है मेरी बैक एक नहीं जाती। सो डोंट टेक इट नॉर्मल, बैक एक को डोंट टेक इट नॉर्मल। इसमें नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज ये हैं कि वो स्पाइनल जो है कैनाल, उसमें स्टेनोसिस ना हो। स्पाइनल स्टेनोसिस, जो स्क्लेरोसिस या डिस्ट्रोफी, इन तीनों चारों को कैटेगराइज करना आपको पता होना चाहिए कि हमारे नर्व जो स्पाइनल कैनाल में गुजरते हैं वो
सुखड़ जाती है। पीपल्स डोंट नो। मेरे पास अभी एक 16 साल का बच्चा आया, जिम कर रहा था वो कहता है जी मेरे बैक एक नहीं जा रही, बैक एक नहीं जा रही, बैक एक नहीं जा रही। मैं कहा गो फॉर द एमआरआई। मैं आई डोंट बिलीव, मैं उनको जनरल मेडिसिन दी, उससे रिलीफ नहीं मिला, शियाटिक की दी नहीं मिला, एलबीपी की दी नहीं मिला। मैं कहा देन गो फॉर द एमआरआई। एमआरआई में आया स्पाइनल स्टेनोसिस आ गया। सो आई वाज रियली शॉक्ड। ही जस्ट 16 इयर्स ओल्ड। फिर मैंने उनकी जेनेटिकली हिस्ट्री ली। आर्थराइटिस की हिस्ट्री थी, और काफी सारी हिस्ट्री थी उनकी वालदा की तरफ से। और उनका वो खानदानी मसला था, मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी थी उनके छोटे भाई को। तो उस पर मेरी जो डायग्नोस थी वो चेंज हो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास तो ये ऑप्शंस हैं, बट नॉट इन द एलोपैथिक। उनके पास द एंड इज द स्टीरॉइड्स एंड द ऑपरेशन, बट वी हैव ऑलवेज ऑप्शंस for all and every type of diseases. This is very important. You must understand this. अच्छा जी, स्पाइनल स्टेनोसिस आ गया जी, अब आपको क्या करना है? होम्योपैथिक साइंस कैन, because cure is by God. It's not from us, not from our medicines. Because remember, मैं अपनी बात नहीं करता, अपने रिलीजन की बात नहीं करता। आई विल टॉक अबाउट द अमेरिकन, वो लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाते हैं, ऊपर मेंशन करते हैं नो लाइफ गारंटी, because they believe this is from the destiny. So life and death is not by us. आपकी जो healing है, this is not by us, this is by God. But the thing in your hand is diagnose and the treatment. If you don't diagnose the patient properly, definitely you are not a good doctor. But if you are a good doctor, you have a good vision, you can treat the patient. So when the spinal stenosis comes, how it diagnosed, you can never diagnose by the general symptoms. बिकॉज जनरल सिम्टम्स की मैक्सिमम क्या है? नमनेस ऑफ जी फीट है, पैर सुन होते हैं, लात फोल्ड नहीं होती, नमाज पढ़ते हैं जी अत्ताहियात में नहीं बैठा जाता, बैंड नहीं हुआ जाता। अब इसमें मर्द हैं या खवातीन है, वही आपको ये सिम्टम्स आगाही देंगे। अगर आप पहली स्टेज से मेडिसिन दे के होम्योपैथिक में देखते हैं कि पेशेंट ठीक नहीं होता, तो क्या आपको करना है? सेकंड स्टेप करना है, अपने पेशेंट के टेस्ट रेफर करना है। अब आम जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसका हमें पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रिशन है हमारी फूड से, वो माइनस में चली गई है। हाउ? आई डोंट नो यू ऑल पीपल्स नो अबाउट दिस और नॉट, लेकिन ये बहुत बताना जरूरी है। हम लोग इस वक्त जितना भी फूड पिछले 15-20 साल से जो ले रहे हैं पाकिस्तान में, इसका जो सीड है वो रीग्रोथ होता है, और वो चाइना से आ रहा है, और उसकी जो न्यूट्रिशन है वो 40 to 50% है, और वो एक दफा कल्टीवेट करने के बाद सेकंड टाइम भी कल्टीवेट होता है। तो होता ये है कि चाइना से हमने जो फूड बीज लिए, सीड्स लिए, पूरी दुनिया में जो भूख पे, गुर्बत पे काबू पाया वो चाइना ने पाया। तो उस सीड्स के फंक्शंस ये हैं, पहले ऑर्गेनिक सीड्स होते थे, किसान 10 बीज बोता था, 2 A+ निकलते थे, 2 A निकलते थे, 2 B और बाकी C या D निकलते थे जो डिस्ट्रॉय हो जाते थे। सो किसान को पता नहीं होता था कि मुझे सालाना प्रॉफिट कितना होगा। नाउ एवरी जो किसान है, ही इज वेरी वेरी मच कैलकुलेटेड, ही नोज कि जी मुझे इतना प्रॉफिट ही प्रॉफिट आएगा, क्योंकि मेरे 10 के 10 बीज फल देंगे और मैं वो दोबारा बोऊंगा। और ये रीजन है कि आज, और इनके ऊपर ग्रोथ हार्मोन आता है, इनके ऊपर जो 6 महीने की फसल है वो 4 महीने में आती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर जैसे कि किडनीज इनलार्ज हो रही हैं, लिवर की इतनी डिजीजेस आ रही हैं, वो इसी वजह से आ रही हैं। ये यूरिया इतना हाई क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं कि वो जल्दी जल्दी बड़ी होती हैं, और वही वो बेड़ागर्क हमारे अंदर जाके कर रही हैं। जो भैंसी और गायें हैं वो खालिश दूध नहीं दे रही है, उनको इतने इंजेक्शन लगा देते हैं, वो 10 लीटर की जगह 40 लीटर दूध दे रही है, जिसकी वजह से उस दूध के अंदर ना ही कैल्शियम है, ना ही कोई और आपको मिनरल्स मिलते हैं जो आपको मिलने चाहिए। इसी वजह से खाते पीते घरानों के बच्चे बच्चियां भी बीमार हैं, और जवानियों में, यानी यंगस्टर्स में पास गर्ल्स और जो बॉयज आते हैं, जो सब 21, 22, 23 साल के हैं, जब उनका विटामिन डी चेक करवाते हैं, ऑप्टिमम लेवल 40 होता है, तो वो उनका आता है जी 10, 12, 7। तो आपका तो सारा स्ट्रक्चर बोन्स पे खड़ा हुआ है, आपकी तो सारी बोन्स विटामिन डी और कैल्शियम पे और फास्फोरस पे डिपेंडेंट है, तो आप फिर कहाँ से रिकवर करेंगे? तो मैं ये समझ रहा हूँ आजकल जो है 90% जो आपकी रिकवरी है वो या तो मेडिसिन से हो रही है और साथ विटामिन से हो रही है, क्योंकि डाइट में कुछ नहीं रहा, नथिंग इज ऑर्गेनिक इन योर डाइट। तो ये वो बेसिक चीज है जिससे पेशेंट अनएक्सपेक्टेडली, वाइटल साइंस अच्छे होने के बावजूद, जनरल हेल्थ अच्छी होने के बावजूद, उसके जो जनरल साइंस है, मसल्स मस्कुलर एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी, वो अच्छी होने के बावजूद वो इनसाइड वहां तक पहुंच चुका होता है जहां हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते बीइंग ए डॉक्टर, कि ये 21 ईयर ओल्ड है और ये इसको विटामिन डी की इतनी डेफिशिएंसी होगी। सो इट इज हैपनिंग।
तो आपने कभी ये नहीं कंसिडर करना है कि ये इतना महंगा टेस्ट है, 5,000 रुपए का टेस्ट हो रहा है पाकिस्तान में विटामिन डी का, तो मैं ये ना कराऊं। डेफिनेटली अगर पेशेंट इस कैटेगरी का नहीं कर सकता, आप उसे अपने तौर पे एक ऐसा भी साथ दें जिसमें विटामिन मेडिसिन, जिसमें विटामिन डी की कमी पूरी हो। ओलियम जैकुलस हमारी मेडिसिन है, प्योर कॉड लिवर फिश ऑयल से वो बनती है, बड़ी बेस्ट मेडिसिन है विटामिन डी की डेफिशिएंसी दूर करने के लिए। तो स्पाइनल स्टेनोसिस में जब वो हो जाएगी तो इसमें हमने स्क्लेरोसिस का ट्रीटमेंट देना है, इसमें हमने विटामिन डी का ट्रीटमेंट नहीं देना, इसमें हमने सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में कैल्शियम और फास्फोरस का ट्रीटमेंट नहीं देना। इससे इसका आपका जो स्क्लेरोसिस या स्टेनोसिस का जब आपने ट्रीटमेंट करना है तो आपने उन मेडिसिन को देना है जो हम बेसिकली कैंसर के म्योजम्स में यूज करते हैं, वो नोजोट्स देने, क्योंकि स्क्लेरोसिस को और स्टेनोसिस को जो है नर्विंग ऑफ स्पाइनल के जो कनाल है, इसको वही मेडिसिन डील करती हैं, आम जनरल मेडिसिन डील नहीं करती। रिमेम्बर इट, मैं यहाँ पे बीच में बहुत बड़ी बात कहूंगा, वो आप लोग स्टॉप लगा लें कि आर्निका जो है, आर्निका इज अवर स्पोर्ट्स रेमेडी। आर्निका स्ट्रेन हो, स्ट्रेस हो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, आपके मसल्स इंजर्ड हो गए हो, टिश्यूज इंजर्ड हो गए हो, वट कोई भी इंजरी आपके मसल्स को, बोन्स को, स्केलेटल को आ गई हो, सबसे बेस्ट दुनिया की दवाई जो होम्योपैथिक में है, जिसको जगह जगह पैनाडोल के से ज्यादा सेल होना चाहिए, दैट इज ओनली आर्निका। आर्निका में एनाल्जेसिक जो सलाहियत है, जो कैपेसिटी है, वो इतनी एक्सट्रीम की है कि ये सीनियर जो आरएसए हिस्ट्रीज होती हैं रोड साइड एक्सीडेंट्स की, उसमें हेमरेजेस तक को हैंडल करता है। इट इज ओनली द किंग ऑफ मेडिसिन इन स्पोर्ट्स इंजरीज। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, रिमेम्बर इट। आप इसको जिसे एक मिसाल देते हैं, इन्फिनिटी लेवल पे भी लेके जाएं, ये आपको मायूस नहीं करेगी। इट इज इनक्रेडिबल रिसर्च। सो फोर्थ स्टेज अब आई थी स्पाइनल कैनाल जो है स्टेनोसिस की। उसके बाद है जी ऑस्टियोप्रोसिस हो सकता है, डिजेनरेटिव चेंजेस हो सकती हैं, स्पॉन्डिलाइसिस हो सकता है, स्कोलियोसिस हो सकता है। स्कोलियोसिस क्या चीज? स्कोलियोसिस और स्पॉन्डिलाइसिस या डिजेनरेटिव चेंजेस, ये वो एक्सट्रीम्स हैं या सॉरी मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिस्टर्ब किया है, आप स्लाइड को क्यों नहीं मूव करवा रहे हैं? अभी तो फर्स्ट स्लाइड ही खुली हुई है। अच्छा ओके, एक्चुअली इसमें ये है, ये स्लाइड्स ये जो आया है, ये डॉक्टर साहब आप कैसे स्क्रॉल करते हैं, ये नहीं, आप आप लोग ये पढ़ें। स्लाइड के अकॉर्डिंग नहीं, आप स्लाइड के अकॉर्डिंग नहीं देंगे। नहीं, स्लाइड्स के अकॉर्डिंग ही दे रहा हूँ, लेकिन देखें ना, लोअर बैक पेन को मैं, एक तो ये है कि मैं जनरल डिफाइन कर दूं जो 4 वर्ड्स लिखे हैं, बट व्हाट आई वांट इज दैट कि मैं सारों को एक्सप्लेन करूं, कि इनके पास स्टेप्स हों, ये साथ साथ लिखे। मैंने पहली बात ये रिक्वेस्ट की थी, काइंडली अगर आप लोग साथ लिखेंगे या मेरी आवाज रिकॉर्ड करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते जाएंगे, क्योंकि मैंने ये 17 स्लाइड्स बनाई हैं, इसमें हर एक टॉपिक को मैं बहुत ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें इस तरह चलो, अगर आप इसको इस तरह से गो थ्रू कर लेंगे तो आपके लिए प्रैक्टिकली आपको बेनिफिट ये है कि आप ज्यादा बेहतर समझ लेंगे। लेकिन अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो मुझे गाइड करें। स्लाइड्स में तो देखिए आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको समझा सकता हूँ वो स्लाइड्स में नहीं है। ये आपको मैं साथ साथ हर एक स्लाइड में जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद द डिजीज एंड विद द मेडिसिन, कि आपको उसको क्या करना है। जी तो वो अब मैं बिल्कुल देखिए, सही है सर। तो फिर अगर आप अपनी तरफ से ही मतलब खुद there are number of causes which can cause the LBP, lower back pain। मैंने आपको कहा it's not a name of a disease, ये एक समरी है, कंप्लींस मजमुआ है आपके सिम्टम्स का। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कि जी अगर स्कोलियोसिस हो गया या डिजेनरेटिव चेंज हो गई है तो व्हेन एंड हाउ इट हैपेंस। सो द बिग थिंग इज इन्वॉल्व इज योर डाइट फैक्टर, जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि डाइट चूंकि आपकी ऑर्गेनिक नहीं रही, तो जिसकी वजह से यंग एज में भी पेशेंट्स जो हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम डिजेनरेटिव चेंजेस, और उनको यंग एज में 30 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में आके कह रहे जी स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, जी स्कोलियोसिस हो गया। जो आपका कर्व होता है वर्टेब्रा का, वो सी शेप हो जाता है, जिसमें टेरिबल किस्म की जो स्केलेटल चेंज है वो आपको अपीयर हो जाती है। जैसे रिकेट्स के बच्चे होते हैं, जब आपको पता लगता है कि जी कमर की हड्डी बिल्कुल टेढ़ी हो गई है और वो नजर आ रही होती। तो इसमें जो जर्नल एक्यूट लेवल का स्कोलियोसिस है वो तो हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो जाता है, लेकिन जहाँ क्रॉनिक या बाय बर्थ या कंजेनिटल आ जाता है, इट इज नॉट एबल टू ट्रीट बाय द हेल्प ऑफ मेडिसिन, उसमें सर्जरी रिक्वायर्ड है। लेकिन एलबीपी में
काफी सारी रीजंस में, एक रीजन ट्यूमर भी है, ट्यूमर्स भी जिनको एक्सटर्नल सबक्यूटिनल ट्यूमर्स हो जाते हैं, और वो जनाब उसमें कहीं किस्में एक लाइपोमा के समय चर्बी की गुठली बन जाती है। वो डीप रूटेड तो कभी नहीं होती है, वो पेनफुल भी नहीं होती, जर्नल होती है, और मोबाइल भी नहीं होती, समटाइम्स बहुत बड़ी हो जाए तो मोबाइल भी हो सकती है, वो भी कॉज कर सकती है, लेकिन वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उसमें इनसाइड इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अगर ट्यूमर्स रूट वाला हो और वो डीप चला गया है, तो उसमें सबसे पहले हमें उस ट्यूमर की जो है बियोप्सी करवाना जरूरी है कि वो मैलिग्नेंट तो नहीं है, कोई और इशू तो नहीं है। फिर इसमें एक कैटेगरी आएगी, मैं अभी आपको हीलिंग और एक्सरसाइज और मेडिसिन की तरफ एंड में लेके चलूंगा, क्योंकि स्लाइड नंबर 12 पर हम हैं। तो इस पे जाने से, अगली स्लाइड पे जाने से पहले, लेट मी कंप्लीट द डिटेल्स ऑफ डिजेनरेटिव चेंजेस एंड स्पॉन्डिलाइसिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। इन सब के पीछे जो बेस है, रिमेंबर इट, दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D3, दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ सेकेंडरी ऑसिफिकेशन। नो वन नोज दैट कि सेकेंडरी ऑसिफिकेशन अगर आपको एनहेंस करनी है बॉडी में, वो जो कोलेजन फ्लूइड है, वो जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है, जो हमारे लुब्रिकेंट हमारे नीज में है, हमारी जो बोन है, वर्टेब्रास है, उसके अंदर जो मौजूद है वो फ्लूइड, अगर वो हमें उसको इनहेंस करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कि आप बिलियंस किताबें खोलें एंड मिलियंस ईयर्स जाया करें, इवन देन आपको इस अप्रोच पे आना कि जी वो साइनोवाइल फ्लूइड जो है, वो लुब्रिकेंट जो है, जो घुटनों में ड्राई हो गया है, जो कमर में ड्राई हो गया है, या वो रिड्यूस हो गया है, या आपका जो हेरिनेटेड डिस्क है वो पंचर हो चुकी है, वो बल्जिंग होगी है, उसमें बल्जिंग मींस कि आपका वो जेल लाइक जो एक अंदर फिलिंग दी हुई है अल्लाह पाक ने मोहरों में, जो कि कोलेजन और वाटर और जो है आपकी प्रोटोपाइलस जो है, वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो अंदर होती है, उससे वो यूनाइट हुआ हुआ, तीन चीजों से बना हुआ, वो लीक हो गया, तो वो रिफिल कैसे होना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके स्ट्रक्चर के अंदर रिफिल करने के लिए एलोपैथिक में देर इज नो ऑप्शन, बट इन होम्योपैथिक यू हैव दिस ऑप्शन दैट यू कैन रिप्रोड्यूस दैट फ्लूइड। और वो कैसे होगा, किस मेडिसिन से होगा, कौन सी मेडिसिन खाने की चीजें हैं जिनसे वो फ्लूइड दोबारा पैदा होंगे, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, नो वन विल टेल यू दिस कि हाउ इट इज प्रोड्यूसेस। आप हैरान रह जाएंगे कि वो चीजें जिसको पैदा करने के लिए ये साइंटिस्ट हजरात अपने सर जो है वो टकरे मारते हैं, वो आपको अल्लाह पाक ने दी हुई है, किस तरह से वो पैदा होनी है, वो क्या चीजें हैं, वो फ्लेक्स सीड है, अलसी के बीज, हमारी मेडिसिन कॉल्चिकम, ये वो आपको मैं हिंट्स और सीक्रेट्स दे रहा हूं, आप इसे अपने पास लिख लें फॉर एवर। आई एम टेलिंग यू टू अप्रोच दिस स्टेज इज वेरी डिफिकल्ट, कि वहां पे जब बड़े बड़े सर्जन हाथ उठा के खड़े होते हैं कि जी वो तो अंदर से जेल ही लीक कर गया है, वो कहाँ से अब बनेगा, वो कैसे रिप्रोड्यूस होगा, वो कौन सी मेडिसिन है। You should be proud of being a homeopathic doctor, that you have the medicine and the solution from the nature. फ्लेक्स सीड्स जो हैं, उस कोलेजन को, कोलेजन किस में सबसे ज्यादा है, पायों में सबसे ज्यादा है। आप जो लोग नहीं खाते हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन बकरे की यखनी पीना, जिनमें स्टेम सेल्स होते हैं, रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, और कोलेजन सबसे ज्यादा पायों में होता है, तो ये बहुत बड़ा ऑर्गेनिक सोर्स है आपकी बोन्स, आपके लिगामेंट, आपके टेंडन्स, आपके मसल्स को रिपेयर करने का, रिफिल करने का, डैमेज हेरिनेटेड डिस्क और बल्जिंग ऑफ वर्टेब्रास जो हैं, जहां पे डायग्नोस हो जाए कि जी अब लीक हो गया, अब क्या करेंगे, सो दैट पेशेंट शुड बी कॉन्टेक्ट ये चीज
Now, Dr. Asya, come to the slide number 13 and 14. ये है आपके लोअर बैक पेन के जो फिजिकली जो चीज इन द हैंड ऑफ पेशेंट है, जो डॉक्टर एडवाइस कर सकता है, दैट इज द होम केयर फॉर लोअर बैक पेन। होम केयर क्या है? लोअर बैक पेन में सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज, जब पेशेंट आ जाए और वो ये कंप्लेंट करने लग जाए कि जी मुझे नमनेस शुरू हो गई है फिंगर्स में, मुझे जो है पेन, मैं थोड़ा सा भी चलता हूँ मेरी एक राइट लेग जो है वो फोल्ड नहीं होती, वो खुलती नहीं है, वो बंद नहीं होती, तो इट मीन्स कि ये अब स्ट्रेस बढ़ रहा है। जब वो क्रिटिकल स्ट्रेस में होकर चलने फिरने के काबिल नहीं रहा, तो आप उसे बेड रेस्ट जो है वो एडवाइस कर सकते हैं। बट बेड रेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि उसको साथ आप मसाज भी करें, उसको मेडिकेशन भी दें ताकि वो उसकी हीलिंग हो, रिकवरी। और उसके साथ आ जाए जो इसमें एक्सरसाइजेस हेल्पफुल है, ये है आपकी स्लाइड नंबर 15। आपको पता है कि योगा, इसमें मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया, लेकिन इसमें एक निशिस्त है, एक्सरसाइज का एंगल है। जो बिल्ली है, कैट, ये अक्सर आपने देखा है अंगड़ाई जब रहती है जो फ्रंट को, जिसमें ये अपना पिछला हिस्सा ऊपर उठा लेती है। तो इसी तरह से जैसे हम सजदा करते हैं, सजदा करने के बाद अगर आप अपने लोअर बैक को बिल्कुल ऊपर लिफ्ट कर लें, लेकिन गर्दन नीचे करने के बजाय सामना सीधा देखें ऊपर की तरफ, तो आपके लोअर बैक पेन को जो स्ट्रेस आ जाता है नर्व्स एंड मसल्स में, उसमें बड़ी हद तक रिलीफ मिलता है। और इसके अंदर दूसरी भी इसमें एक आपको पिक है, स्ट्रेटनिंग दी बैक, ये वाली एक्सरसाइज, और ये पिक नंबर है 16 एंड द पिक नंबर 14, योगा वाली 15 सॉरी। तो आप इनको थोड़ा सा गौर से देखें। इसमें स्ट्रेचिंग की जो एक्सरसाइज बताएंगे, दीज आर वेरी हेल्पफुल टू गेट रिड्यूस एंड गेट रिड ऑफ द लोअर बैक पेन। लोअर बैक पेन की बाद जो है स्टेज आ जाती है शैटिक की। शैटिक और लोअर बैक पेन में क्या डिफरेंस है? सिम्टम्स वही हैं, लेकिन इसके साथ जो स्वेलिंग है वो क्रॉनिक होगी होती है। जो नर्व्स आ रहे हैं, क्रैनियल नर्व्स जो आपके मोहरों से निकल रहे हैं और नीचे लेग्स में, लोअर लिम्स में ट्रेवल कर रहे हैं, वो कंप्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं, स्वेलिंग जिसकी वजह से बढ़ जाती है, और लात तकरीबन मफलूज हो जाती है, 60-70% पैरालिटिक होती है। इट कैन, यू कैन नॉट फोल्ड द लेग। और मैंने आपको फिर कहा, जैसे स्कॉट्स लगाते हैं वो आप नहीं लगा सकते, जैसे अताई हाथ में बैठते हैं वो आप नहीं बैठ सकते। और नमनेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब नमनेस बढ़ जाती है, दिस स्टेज विल बी कॉल्ड और नोन एज द शैटिक। और शैटिक हमारे यहाँ इस वक्त नर्व कंप्रेशन हर दूसरे पेशेंट को हुआ हुआ है। खवातीन में ये क्यों सबसे ज्यादा है? खवातीन में ओबेसिटी की वजह से, डिलीवरीज की वजह से, फिर उनकी डाइट अच्छी नहीं रहती, फिर उनके हार्मोनल लेवल का डिसऑर्डर रहता है, उनकी जो ऑस्टियो डिजेनरेशन होती है या डिजेनरेटिव चेंजेस आती हैं, वो उनके हार्मोनल इशू या जरूरत से ज्यादा जब एक स्ट्रेस आता है, लेबर स्ट्रेस जो आता है खवातीन पे, वो जब अगली स्टेज पे आती है उनको डाइट प्रॉपर नहीं मिलती। इसमें कौन सी चीजें चाहिए जो रेस्टोर करती हैं लिगामेंट्स को, टेंडन्स को, उसकी लुब्रिकेशन को? दिस इज आलमंड ऑयल, दिस इज कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल और कोकोनट वाटर, the best healing substance, the best healing substance for the lower back pain, for the sciatic। sciatic के पेशेंट्स को कोकोनट का जो है पानी भी पीना चाहिए, कोकोनट खाना भी चाहिए, क्योंकि इसमें जो पॉलीसेक्राइड चेन्स हैं उसमें एनर्जी ब्रेक नहीं होती कंटिन्यूसली। एक शुगर के पेशेंट, और दूसरा जिनको मसल्स डिस्ट्रॉफी या जो डिहाइड्रेशन है, जब मस्कुलर डिहाइड्रेशन भी एक स्टेज है, जैसे बहुत ज्यादा लेबर जो करते हैं लोग, उनके बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जिम करने वाले लोग बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं, या इस मौसम में जुलाई अगस्त सितंबर में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हैं हम लोग, तो हमारा जो मस्कुलर स्ट्रेस है या पेन है, वो चांसेस ये भी चीजें क्रिएट कर सकती हैं। तो इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ मिनरल्स है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम पोटेशियम का लॉस है। इससे भी आपकी डेफिशिएंसीज और डिहाइड्रेशन पैदा होती है, जो आपके मसल्स को श्रिंक करती है, पेन करती है, और लोअर बैक पेन भी कॉज करती है, और शैटिक की तरफ ले जाने को इनहेंस करती है सिम्टम्स को। सो व्हाट यू डू फॉर दिस दोस पेशेंट्स आल्सो, कि आप उनको ये भी एडवाइस करें, अगर वो शुगर के पेशेंट नहीं है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं है, कि आप नमकोल जो है, ओआरएस, वो अपना मेंटेन करें इस मौसम में। आप डिहाइड्रेशन ना होने दें, पानी का जो लेवल है वो मेंटेन करें, और जनरल मसाज करें। ये वो सिम्टम्स हैं जो आपको प्रैक्टिकली इन चीजों से पेशेंट को रिलीफ देने में हेल्प करेंगे। और
इसके बाद जी डॉक्टर आसिया प्लीज आखिरी जो स्लाइड है वो आप लाएं, कौन सी है? लास्ट स्लाइड, दिस इज द लास्ट वन। जी सर, ये लास्ट स्लाइड है, ओके 17 ओके स्लाइड। ओके ओके, आई थिंक सो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मेरी अपनी तरफ से तो यही है कि फॉर द लोअर बैक पेन दिस इज मोर देन इनफ, बट नाउ आई वुड लाइक टू टेल अबाउट समथिंग, द मेडिसिन, द होम्योपैथिक मेडिसिन। मैंने आपको पहले बताई थी द किंग स्पोर्ट्स इंजरीज में आर्निका। अच्छा, कॉल्चिकम मैंने आपको बताई, जो फ्लूइड है, साइनोवाइल फ्लूइड, जो आपके फिलिंग है मोहरों के अंदर, उसको रीगेन करने के लिए है। उसके साथ हल्दी, प्याज और अदरक और फ्लैक्स सीड्स, ये भी उसको पैदा करते हैं। अच्छा, तीसरा जो है, जो आपका नर्व कंप्रेशन है, व्हाट टू डू विद द नर्व कंप्रेशन, जो कि लोअर बैक पेन से नेक्स्ट स्टेज में शैटिक में आता है। नर्व कंप्रेशन में क्रॉनिक स्वेलिंग है और मोहरों में नर्व दब जाती है, और ये दबती ही किन में है, बार बार L1 से लेके L5 तक, और फिर S1 S2 और फिर कॉक्सिक है। अच्छा, इसकी रीजन ये L1 और L5 इसलिए पकड़े जाते हैं कि बार बार मैं आपको बताऊंगा कि ये वो पोर्शन है जिसमें हमारा बॉडी का मैक्सिमम लोड है, मैक्सिमम स्ट्रेस 24 घंटे उठते बैठते हम इन L1 से L5 तक देते हैं। तो इसमें क्या हल, सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन ये है, in the allopathic you have to go for the surgery, but what is in homeopathy? Please save it, this thing, hypericum. Hypericum is the best medicine, excellent medicine जो है टू गेट रिड ऑफ sciatic एंड लोअर बैक पेन। ये वो स्टेज जहाँ पे नर्व कंप्रेस हो जाते हैं मोहरों में, और सर्जन्स कहते हैं जी कोई ऑप्शन नहीं है, और पेशेंट के पास लास्ट ऑप्शन एक ही होती है कि जी गो फॉर द सर्जरी, जिसमें गारंटी नहीं है, और सेकंड ये कि ये दोबारा हो जाता है। इसके साथ साथ जब हम हाइपेरिकम दे देते हैं और क्विक रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू ट्रीट द डीजेनरेटिव चेंजेस। डीजेनरेटिव चेंजेस जिसमें हड्डियां, मसल्स, नर्व्स, हर चीज खुर जाती है, घुल जाती है, अपने ओरिजिनल साइज से कम हो जाती है, जिसकी वजह से अलाइनमेंट डिसऑर्डर आता है। तो ये चीजें क्रिएट होती हैं। उसको रेस्टोर करने के लिए जो आपकी डाइट में चीजें हैं, जो आपकी मेडिसिन है हमारी, उसमें होम्योपैथिक में कोलोसिन, कलकेरिया फास, कलकेरिया कार्ब, कलकेरिया फ्लोर बेस्ट मेडिसिन हैं, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ओलियम जैकुलस, विटामिन D3 का बेस्ट सोर्स, ओमेगा 3 6। अब बाहर की कंट्रीज में ओमेगा 3 6 9 चल रहा है, वो फ्लैक्सीड जो है उसका शामिल हो जाए तो ओमेगा 9 भी आ जाता है। तो ओमेगा 3 6 9 यानी कॉड लिवर फिश प्लस फ्लैक्सीड ऑयल मिक्स करके इसके कैप्सूल चल रहे हैं, और वो बेस्ट क्योर और सोल्यूशन है आपको उन लोगों के लिए जिनको लोअर बैक पेन है और जिनको शियाटिक है। इसके अलावा डाइट में भी कौन सी चीजें हैं जो आपको हेल्पफुल कर सकती हैं? वाटरमेलन है, 90-80% तो आपका वाटर लेवल मेंटेन होने से ही आपका लोअर बैक पेन और शैटिक जो है वो कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद दूध है, फिर हाई प्रोटीन। हाई प्रोटीन में कौन सी चीज है? हाई प्रोटीन में सबसे पहले आप व्हाइट मीट में आ जाए, फिश, फिर प्रॉन्स, फिर उसके बाद आए रेड मीट को अवॉइड करें, उसमें नाइट्रोजन लेवल राइज हो जाता है, पेशेंट को और कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो जो एग्स हैं उसका वाइटनर है, जो बटेर के अंडे हैं वो बहुत पावरफुल है, बड़ी रिच प्रोटीन है, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो कोई कोलेस्ट्रॉल राइज नहीं करते। तो अगर आप डाइट चार्ट और मेडिसिन होम्योपैथिक की अच्छी दे दें पेशेंट्स को, तो वो बहुत जबरदस्त जबरदस्त काम करेगी। अब इसमें मैं आपको होम्योपैथिक में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एनाल्जेसिक है, जो स्वेलिंग को रिलीफ देती है, जस्ट लाइक द सिनफ्लेक्स एंड एलोपैथिक, वो मैग्नीशिया फास्ट। मैग्नीशिया फास्ट नर्व्स के अंदर स्वेलिंग को, ब्रेन के अंदर स्वेलिंग को, वर्टिब्रस के अंदर स्वेलिंग को, मसल्स के अंदर स्वेलिंग को इस तरह से रिड्यूस करती है, जिस तरह से हमारी जितनी भी एलोपैथिक की जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स करती हैं, जिसमें एनसिड भी आ जाती है इसके साथ, सिनफ्लेक्स के साथ, या कोई और हैवी पेन किलर्स आ जाते हैं, ये उसकी इक्विवेलेंट मैग्नीशियम फास्फेट यानी मैग्नीशिया फास्ट एक बड़ी एक्सीलेंट स्वेलिंग और ओडिमा को रिड्यूस करने की मेडिसिन, or it will act as magic on the situation instantly, catalytically,
गिव द रिलीफ टू द पेशेंट। अब मैग्नीशिया फास्ट जो है वो गर्म पानी में पेशेंट्स को दें, देखें उनका मस्कुलर स्ट्रेस पेन कैसे खत्म होते हैं। डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाए, रिमेंबर इट, 3 to 6 months, 3 to 6 months you have to advise the patient के you should not discontinue the medicine। पेशेंट्स को पता नहीं होता, वो समझते हैं डॉक्टर साहब अपने पैसे बनाने के लिए कोई बात कर रहे हैं। उनको ये बताएं कि प्लीज यू हैव टू टेक द मेडिसिन फॉर मोर देन 3 months, 6 months और मे बी 1 year, डिपेंड कि डैमेज कितनी हो चुकी है। डीजेनरेटिव चेंजेस यहाँ आ जाए, इसका जो अल्टीमेट टाइम कंक्लूजन है वो पूरे 12 months है। दिस इज अ 12 months, और 12 months के बाद जो आपका पूरा कर्वेचर है वर्टिब्रस का वो, और उसमें जितनी डीजेनरेटिव चेंजेस हैं वो रिफिल हो जाती है। लेकिन अगर पेशेंट डाइट ठीक नहीं रखता और अपना इलेक्ट्रोलाइटिक लेवल ठीक नहीं रखता, मिनरल लेवल ठीक नहीं रखता, और अपनी मेडिसिन भी प्रॉपर नहीं लेता, तो उसको आप कह दें वेट फॉर द नेक्स्ट बिग ट्रबल। बिकॉज यही वो जनरल अवेयरनेस है जो हम पेशेंट्स को देना चाहते हैं और देते हैं, लेकिन जब किसी को दे दें तो शायद समझते हैं जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं, बट दिस इज द ट्रूथ यू हैव टू गिव टू द पेशेंट्स। सो आई थिंक सो इट विल बी इनफ फॉर ऑल ऑफ यू, बट आप लोगों को कोई क्वेश्चंस कोई बात, हाँ इसमें मैं सॉरी टू से एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको क्लास कहता चलूं कि इन चीजों से हटके भी आपके पास लोअर बैक के पेशेंट आ सकते हैं जिनको पैरालिसिस हो, जिनको लकवा हो, या जिनको एंजाइटी हो, या डिप्रेशन के पेशेंट हो, या जैसे नार्कोटिक्स लेने वाले लोग आ जाते हैं। तो ऐसे लोग, या जिनको एपिलेप्सी होती है, कैटालेप्सी होती है, या इसके अलावा ब्रेन एलिमेंट्स हैं जो हमारे इन जनरल लेवल पे नहीं आते, तो उनके भी लोअर बैक पेन्स होती हैं, लेकिन वो पैरालिसिस से कंसर्न कर रही होती हैं। वो इट्स नॉट इन नॉर्मल स्टेज, यानी वो इस हालत में नहीं है कि वो कोई इंजरी हुई है, या कोई गिरे हैं, या कोई स्पोर्ट्समैन है, या उनको कोई डिजेनरेटिव चेंजेस आई हैं। उनकी अपनी जो हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स, नार्कोटिक्स से लेके, या कोई उनको स्पाइनल जो ब्रेन में इश्यूज हैं, तो उसके रिफ्लेक्स में उनको लोअर बैक पेन्स आ जाती हैं। वो लॉस ऑफ जो न्यूरॉन्स ट्रांसमिशन है उसके रिफ्लेक्स में होती है। उसमें याद रखें कि ऐसे लोगों के लिए इन सारी चीजों से हटके कालीफॉस और जेलसिमम ज्यादा अच्छा काम करता है। So it is for those patients which don't belong to the degenerative changes, ऐसे भी बीच में कैटेगरीज आ जाती हैं। So this is the maximum 14 और 15 type of possibilities of LBP जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, और इसमें आपकी पैथोलॉजी के लिए मैंने आपको गाइड किया है कि ड्यूरेशंस को याद रखें। 3 मंथ से पुराना पेशेंट हो लोअर बैक पेन का या शैटिक का, तो उसको MRI एडवाइस करें, ये मस्ट है। हो सकता है वो डिजेनरेटिव चेंज क्रॉनिक हो गई। So, Dr. Asia, Yes, sir. please, I think so. It is enough, or should I talk about the cancer or gangrene? जी जी सर, वो आप यहाँ पर करेंगे कि व्हाट्सएप के ग्रुप में, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड शेयर नहीं होंगी, वो ग्रुप में ही मैं सेंड कर देती हूँ। Because I just want to show you the miracle of the homeopathic science कि देखिए कैंसर और गैंग्रीन कैसे ठीक होती है। और उसमें अगर डॉक्टर से आप समझते हैं मुनासिब स्लाइड्स अभी दिखा सकते हैं तो दिखा दें, नहीं तो अच्छा जैसे सर, फिर आप 2 मिनट वेट करें, बस 2 मिनट रुकें, फिर मैं वो स्लाइड इसमें डालती हूँ पहले। मैं शिफ्ट करके स्लाइड फिर उसके बाद अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई बात करना चाहें आप तब तक करें, मैं जब तक स्लाइड शिफ्ट करती हूँ। मैं करता हूँ 1 मिनट को दे मुझे।
हेलो, सॉरी, द वॉइस वाज म्यूटेड। प्लीज, ये सारे गैंग्रीन के पेशेंट हैं, मेरे पास आए और एम्पुटेशन रिक्वायर्ड थी। ही इज फ्रॉम आर्मी, रिटायर्ड कर्नल है, और इनके पापा को गैंग्रीन हुई। तो इनका कंप्लेन ये था, यूएस से, कनाडा और जितने भी बाहर की और कंट्रीज से कलर डॉपलर इन्होंने करा लिया था, और उन्होंने कहा था कि जी एम्पुटेट करना लेग को फ्रॉम द इंग्वाइनल रीजन। तो ये सुन के ही आए कि एम्पुटेशन जो है वो डिक्लाइन हो जाती हैं यहाँ पे। और चूंकि 2 पेशेंट से अलाइव उनकी फैमिली में, और उन्होंने इनको रेफर किया, तो ये जिस स्टेज में पास लेके आए, लेग बिल्कुल डेड थी, उसमें बिल्कुल माइनस थी, यानी ब्लड सर्कुलेशन थी ही नहीं। तो ऑलरेडी ये थोड़ा सा एम्पुटेट करवा चुके हुए थे, और ऐसे ऐसा होता ही है गैंग्रीन में या कैंसर में, स्पेशली ब्रेस्ट फीमेल्स की जो है वो, एक अगर एम्पुटेट होगी, बहुत कुछ होती है परसेंटेज जो सरवाइव कर जाती हैं, वरना मोस्टली साल डेट के अंदर जो है वो दे विल नॉट सरवाइव। तो इस कंडीशन में हम लोग होम्योपैथिक जब लेते हैं डॉक्टर्स केस, क्योंकि इसके बाद जो थर्ड है वो मैं ब्रेन ट्यूमर्स लेता हूँ, और इस हालत में मैं आपको बस ये स्टेज कह सकता हूँ कि अगर सुबह एडवाइस है कि जी वो पेशेंट हॉस्पिटल में है और सुबह ऑपरेट करना है या शंटिंग करनी है, तो वो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, और गॉड ब्लेस देम, मतलब उनको शफा देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। सो आई डोंट बिलीव दैट कि वी शुड, being a human and doctor, should claim our medicines. It is all by God, not by us or either of medicines. तो ये जो गैंग्रीन के पेशेंट थे, जिनकी डेड थी सर्कुलेशन, इन इनसे मैंने कहा मुझे आई रिक्वायर्ड 5 वीक्स, मुझे 5 हफ्ते दें, मेडिसिन आपको होम्योपैथिक की देंगे, आप 5 हफ्तों के बाद कलर डॉपलर करवा लें। ठीक है जी, अगर खून चल पड़ा वेल एंड गुड, ना चला तो पूरी दुनिया के जिस मर्जी हॉस्पिटल से जाके आप लात कटवा लें। अब आप देखेंगे जिस जगह ये आए थे, बिल्कुल डार्क जो है ना, ब्लैक, और जैसे जली हुई लकड़ी होती है, डेड लेग थी। मेडिसिन देने के बाद जो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का सबसे बड़ा मुआवजा था, दिस इज अ मिरेकल, 27 डेज में, जस्ट इन 27 डेज, जो ब्लड है उस मुर्दा लात में चल पड़ा। उसकी लाइव सारी तस्वीरें, और 25 जो फैमिली मेंबर से वो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के बैठे हुए थे। तो आई रिमेम्बर दैट डे के जब मैं उठा सुबह, तो जो है अल्लाह अकबर उस्मान अल्लाह के नारे लग रहे थे, और वो भरा हुआ था व्हाट्सएप, और उसमें उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर साहब खून चल पड़ा। और इस तरह से इस ईयर में जनवरी 16 से मैंने पाकिस्तान में दोबारा काम शुरू किया, और ये तकरीबन आप अगस्त है, तो 8 मंथ्स में 6 नंबर ऑफ पेशेंट्स की जो एम्पुटेशन है वो डिक्लाइन, एंड दिस इज अ मिरेकल फॉर देम। और वो होम्योपैथिक साइंस से ज्यादा शायद ये समझने लगे कि मैं को बाबा शाबा हूँ, लाइक दैट। मैं कहा जी इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स टोटली अ मिरेकल ऑफ अल्लाह, एंड दिस इज एक्चुअली द रियलिटी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। सो यहाँ गैंग्रीन और कैंसर, देखें आप, मुझे नहीं पता कौन कौन से स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स या मेंबर्स या होम्योपैथिक लवर्स मुझे सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस अजीम शान प्लेटफॉर्म पे आप लोग खड़े हैं होम्योपैथिक के, इस साइंस को मामूली ना समझिएगा। दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। इफ यू आर अ होम्योपैथिक डॉक्टर, यू कैन अचीव अ वेरी इम्पॉसिबल थिंग्स इन योर लाइफ। तो इस तरह से लेके ये वो केसेस हैं जो कहीं मटेरिया मेडिका में नहीं लिखे हुए, कि हमारे ऑनरेबल फादर ऑफ होम्योपैथिक डॉक्टर फ्रेडरिक सामिल हानेमन, उन्होंने जो है ये कैंसर ठीक किया, गैंग्रीन ठीक की, इस तरह की। लेकिन उन्होंने आपको वो रास्ता दिखा दिया कि होम्योपैथिक साइंस यहाँ तक लीड करती है, यहाँ तक पेशेंट्स को ठीक करती है। सो यू मस्ट हैव अ कॉन्फिडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन अल्लाह, देन इन योर मेडिकेशंस, दैट इट विल वर्क। बट इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी डायग्नोस ठीक होनी चाहिए, आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। आपके क्या ख्याल है कि ये जो है मुआवजा कैसे हुआ? इट्स टोटली बाय द होम्योपैथिक मेडिसिन। कोई इसमें मैंने और चीज नहीं दी, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जहाँ चीजें स्क्लेरोसिस या एट्रोफी या डिस्ट्रोफी या जो है आपके इसमें कैंसर में कन्वर्ट हो चुकी होती है, तो किस तरह से हम उनको वापस लाते हैं, इन चीजों के ऊपर आने के लिए, इसके ऊपर लेक्चर देने के लिए भी इंशाल्लाह हमको दिन रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको नोट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप याद रखिएगा, एक क्लासिकल होम्योपैथिक जो डॉक्टर्स हैं, वो कभी भी
मेडिसिन के साथ नजोर्स को नहीं भूलते। अगर आप नजोर्स नहीं दे रहे तो याद रखें आप होम्योपैथिक डॉक्टर ही पूरे नहीं है कंप्लीट, क्योंकि उसके बगैर किसी भी बड़े मियाज़म को जो डिजीज कॉज कर रहे हैं आप उसके ऊपर ओवरकम आ ही नहीं सकते, नेवर एवर। सो रिमेम्बर कि आपकी मेडिसिन के साथ साथ आपको नजोर्स को पढ़ना जरूरी है। जिस दिन आपको नजोर्स के मेरेकल्स पता लग गए तो आज दुनिया जो है ये कोविड से परेशान है, तो कोविड इज नथिंग फॉर द होम्योपैथिक डॉक्टर्स। ये बहुत इजीली इसको टाइट्रेट करके बना सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन तो बच्चे भी बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअली दिस इज टोटली लैब वर्क। तो आई एम सॉरी टू से, सो इस वजह से कोविड-19 के जो सॉल्यूशंस हैं वो डिफिकल्ट थोड़े से हो गए, लेकिन इट इज नॉट डिफिकल्ट इन होम्योपैथिक सेंस, इट इज वेरी इजी। सो डोंट फॉरगेट the blessing of Allah. Homeopathic is a blessing, and please you must thankful to God for this, and for us it's a gift from God to us. So there is a lot of miracles. You can see this, ये छोटी सी एक मिसाल है कि यहाँ तक आपको ये चीज ला सकती है अगर आपका फेथ है। So if there is a will, there is a way. This is like that. So thank you very much, all members and doctors, and I hope you will like. And if not so, I'm sorry for that because I have my own style. But basic. नहीं सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। वाकई लेक्चर से पहले जो आपने मुझे कहा था वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि इससे पहले मैंने आपका लेक्चर अटेंड नहीं किया। हाँ, मैंने रिटन में आपका बहुत कुछ देखा है, बहुत रिसर्च वगैरह देखी है, लेक्चर्स इस तरह से मतलब कभी ऑनलाइन मैंने लिया नहीं आपका, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। हालांकि आपकी जो स्लाइड थी उसके आप अकॉर्डिंग से हमारी थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो रही थी, लेकिन वो बात आपकी ठीक है कि जो स्लाइड्स में है उसके अलावा भी आप गाइड कर रहे थे। होम्यो से रिलेटेड स्लाइड्स में नहीं था, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा आपने होम्यो ट्रीटमेंट और किस तरह से केस टेकिंग करनी चाहिए वो बहुत अच्छे से गाइड किया। और वाकई जब सर आपका लेक्चर लेना है तो हमें अपने साथ कॉपी पेन जरूर रखना है, और ये अच्छी बात है कि स्टूडेंट जो है कंसंट्रेट होकर सुनता है फिर। नो डाउट। तो वाकई आपका एक जो स्टाइल था वो बहुत डिफरेंट था, और जो इनफैक्ट जो आपने लास्ट में हमें एक टॉपिक से हट के था, बट वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था हम लोगों के लिए। एक चीज हमारे सामने आई, क्योंकि गैंग्रीन पर जब एक सोच आती है तो यही आती है कि भाई अब इसके बाद कोई रिजल्ट नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट हमें देखने को मिला है। ऐसी दिस इज प्रैक्टिकल। अनफॉर्चुनेटली आइदर फॉर्चुनेटली मेरे फादर एंड मदर बोथ माय पेरेंट्स पास्ड अवे विद एन इंटरवल ऑफ 8 days। सो मेरे पापा और मामा का जिन्होंने डेथ सर्टिफिकेट बनाया इन द यूनियन काउंसिल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, मैं जब वहां पे गया तो मैंने उनका जो पैर था उसका राइट जो थंब था वो डिके हुआ था। तो मैंने वो उनको जब क्वाइफ सारे लिखवा रहा था अपने पेरेंट्स से, तो मैंने उनको देख के उनको कहा, मैं कहा जी इसको प्लीज एम्पुटेट ना करवाइएगा, आई विल सेंड यू मेडिसिन। सो वो थोड़े से उनको शॉक लगा कि हाउ इट हैपेंस, ये कैसे मुझे इतनी बड़ी बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं। तो वो तकरीबन शॉक में आ गए। उन्होंने कहा जी आज 15 days हो गए, मेरी मिसेस जो है वो कह रही है कि किसी भी सूरत में मैंने आपका पैर का अंगूठा नहीं कटवाना, तो आप प्लीज कोई और सोल्यूशन दें। तो मैं उनको कहा कोई ऐसा मसला नहीं, कल मैं आपको मेडिसिन भिजवा दूंगा। और हुआ ये जस्ट इन 6 weeks उन्होंने मुझे कॉल की, मेरे पूछा, मैं कहा जी मैं तो अभी पाकिस्तान आया हूँ, मैंने अभी क्लिनिक जो अपने घर में मेडिसिन रखी उन्हीं से आपको बना के दी है, बट मैं आई डिड नॉट स्टार्ट माई क्लिनिक। तो मैंने उनको वो मेडिसिन दी, और जो है 2 महीने के बाद यानी 2-2.5 माह के बाद वो अपनी फैमिली के साथ थैंक्स करने आए, उनका अंगूठा बिल्कुल ठीक हो गया और उनको यकीन नहीं आया कि ये कैसे हुआ, ये मुआवजा कहाँ से हो गया। तो मैं कहा इट्स ऑल बाय अल्लाह। एंड ये चूंकि हमारी 3 generations का एक्सपीरियंस है, तो ऑल दिस मेरे साथ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो अभी हुए, और वो मेरे लिए 6 पेशेंट्स मेरे लिए मोर देन 6,000 है, बिकॉज इट्स अ बिग अचीवमेंट। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि आप उसको यहाँ लेके चलना दिखाना मीडिया और नहीं हो रहा, लेकिन होना चाहिए, तो जहां जहां हो सकता है हम लोग अपनी एफर्ट से उसको प्रमोट करते हैं इंशाल्लाह। एग्जैक्टली राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो सर हम यहाँ पे सेक्शन को एंड करते हैं, क्योंकि 3 minutes आर लेफ्ट ओनली, हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी सबसे। मेरे एक दो पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, अनीका इसहाक अगर आप मीटिंग में हैं, और डॉक्टर आजम अली मुगल, आपने क्वेश्चन किए थे। मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, काइंडली आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं अभी प्राइवेसी हटा दूंगी, आप वहाँ पे क्वेश्चन अपने रिपीट कर दीजिए ताकि डॉक्टर आमिर मलिक आपका आंसर कर दें।
और इसके अलावा सर एक दो क्वेश्चन मेडिसिन से रिलेटेड भी आ रहे थे, क्योंकि हमें और सारी स्लाइड्स तो हमें मिल गई हैं, लेकिन एक मेडिसिन से रिलेटेड कोई स्लाइड नहीं मिली। और आपको पता है हम होम्योपैथ तो वैसे भी मेडिसिन, बस हमें मेडिसिन कहीं से पता चल जाए कोई किसी चीज की, तो ये देखिए वो जी जी मेरी आपको वही बात है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप पेन कॉपी रखेंगे तो यू विल इंशाल्लाह सक्सीडेड, आपकी कोई चीज बाकी नहीं रह जाएगी। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप वो जो मूवी थी, सॉरी टू से गिविंग दिस रेफरेंस, थ्री इडियट्स, तो उसमें वो कहते हैं कि पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि आप एक अच्छे डायग्नोस करने वाले डॉक्टर बने, मेडिसिन खुद ब खुद आएंगी। बट इंशाल्लाह जितनी मैं आपको बता सकता हूँ वो मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। कोई ऐसी बात नहीं है, इल्म को जितना बताएंगे उतना बढ़ता है, वो कोई ऐसी नहीं है। ठीक है सर। वो सर नोट कर रहे थे, पार्टिसिपेंट का यही मैसेज बता रहे हैं, हम नोट कर रहे थे, बट बीच में से कुछ मिस हो गया है हमसे, तो बस एक दफा काइंडली आप रिपीट कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। और सर ये बहुत अच्छा लगा कि आप जो भी मेडिसिन बता रहे थे, साथ साथ इसका मोड ऑफ एक्शन भी बता रहे थे कि ये हमारी जी इस चीज बिल्कुल। के ऊपर अफेक्ट करती है, इस चीज के ऊपर करती है, तो वो अच्छी बात है, पता होना चाहिए। देखिए आपको साइनोवाल फ्लूइड पैदा करने के लिए कभी भी कोई मेडिसिन नहीं बताया, नेवर एवर, आई एम टेलिंग यू। आप बिलियंस डॉक्टर्स को मिल लें, पूछ लीजिएगा, डोंट टेल द सीक्रेट, बट आप उनको पूछिए साइनोवाल फ्लूइड को रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या तरीका है, या वो कोलेजन जो जेल है जो हमारे मोहरों के अंदर होता है वो निकल जाएंगे। बड़े बड़े सर्जन सर पकड़ के बैठे होते हैं, इनको पूछें जाके, इनको कहें डू यू हैव एनी मेडिसिन, यू, मैं कह रहा हूँ यू मस्ट बी प्राउड दैट यू आर अ होम्योपैथिक डॉक्टर। तो इनके पास वो नहीं है। बट आई टोल्ड द सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो उनके बिलीव्स हैं ब्लाइंड। मैं कह, यू गो एंड जस्ट रीड व्हाट इज द कॉल्चिकम एंड व्हाट इज द फ्लैक्स सीड। गॉड गिव दिस पावर इन दीज थिंग्स विच कैन रिप्रोड्यूस दैट जेल इन योर वर्टेब्रा। किसी में नहीं है, हल्दी में ये है, प्याज में है, अदरक में है, ये जो कुछ हम खाते हैं ये हमारी मेडिसिन। So I'm telling you what the thing I'm giving you is the golden points. Please save it. You will remember me one day कि डॉक्टर आमिर टोल्ड अस दिस थिंग्स। तो मैं आपको वो दे रहा हूँ जो आपको किताबों में भी सारी उम्र खपने के बाद नहीं मिलेगा। सॉरी टू से बाय माय वर्ड्स, लेकिन ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ क्योंकि आपकी ये अप्रोच यहाँ तक आने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम। सो मैं ये इसलिए चाहता हूँ कि आई वांट द राइज इन द होम्योपैथिक साइंस, सिंपल इज दैट, नथिंग एल्स। आप लोगों में से अगर आपकी दवाई देने से अल्लाह पाक 10 मरीजों को शिफा देगा और उनको दवाएं मिलेंगी तो वो अल्टीमेटली उसको कुछ हिस्सा मुझे भी मिल जाएगा। तो इससे आगे मेरा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है, ठीक है इंशाल्लाह सर। ग्रेट ग्रेट, सही है। तो अब ये है कि क्वेश्चन सर थोड़ा सा भी आपका साथ में बीच चाहिए हमें थोड़े से टाइम के लिए। क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे होता है, यू नो दैट, तो मैं वहाँ से प्राइवेसी हटा रही हूँ। काइंडली सब अपने वहाँ पे क्वेश्चनिंग कीजिए, और मुझे लगता है कि बहुत आएंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सबको बहुत फायदा हुआ है। और काइंडली अपनी फीडबैक भी वहाँ पे शेयर कीजिए। तो अब नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे को होगी सेम टाइमिंग पे, और वो है फ्रोजन शोल्डर, डॉक्टर आमिर ही कंडक्ट करेंगे। तो अब हम इसको एंड करते हैं, ठीक? ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। Allah, take care, bye bye, and God bless you everyone. Take care, थैंक please. यू सर, Assalamu थैंक यू। alaikum. Bye-bye.